ان کی مدد کرنے والے قریبی دوست US کے تب شروع ہوا جب میکڈونلڈز ہے جس نے انسانیت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ اتنی بڑی آبادی پر یہ چھوٹی سی قوم اور یہ چھوٹی سی آبادی کیوں بھاری پڑ رہی ہے؟ ینگ جنریشن کو برباد کر رہی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو کون سی ہے وہ انڈسٹری کہ اسرائیل کے اکنامی کا ایک بڑا حصہ، ساتھ میں ایک اور شاکنگ بات جاری دے گئے ہیں، ساتھ ہی ایئر کرافٹ، مشینری، کار اور ایک زندگی کی اہمیت کیا ہوتی جب تک مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی وہ قانونی یا غیر قانونی طور پر اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر کے ان کے اکنامی پر اصل میں امپیکٹ کر پائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ سوچیں، میں آپ کو ایک سوچ دے رہی ہوں، اوکے؟ یہیں سے حل بھی ملے گا۔ میکڈونلڈز ڈیلی اسرائیل کی آرمی کو 4000 میل دیتی ہے میری زندگی سے نکلا، اور میں یہ 2 پروڈکٹ بھی بوائکاٹ کرتی ہوں۔ کبھی بھی نہ پیپسی نہ کوک، نہ میں پیوں گی نہ میرے فیملی پیے گا۔ اس محترمہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، پر سوری آپ نے کافی لیٹ کر دی، اور اب تک آپ کی صحت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو چکی ہے جنک فوڈز کھا کھا کر۔ پر چلو، جب آنکھ کھلی تب سویرا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسرائیلی اور US پروڈکٹس کو کیوں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم اتنی دور سے بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور ان کی مدد کرنے والے قریبی دوست US کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر کے اپنی احتجاج ظاہر کریں۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب میکڈونلڈز نے فری میل ڈسٹریبیوٹ کیا اسرائیلی آرمیز کو وار کے دوران۔ تو ایسی کمپنیز کو آپ ضرور اوائڈ کریں تاکہ ان کی اکنامی کو نقصان پڑے اور مالی طور پر کمزور ہونے پر یہ اپنی آرمی، بمز اور وار میں یوز ہونے والے آرمز پر خرچ نہیں کر پائیں۔ اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں وہ تو کرنی ہی چاہیے۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ان فوڈز بیوریجز کو بائیکاٹ کرنے سے کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ انکل چپس تو اوائڈ کر سکتے ہیں، پر موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانکس میں یوز ہونے والی مائکرو چپ کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں۔ مطلب اسرائیلی اور US فوڈ انڈسٹریز کو بین کرنے پر ان کے اکنامی میں خاص فرق نہیں پڑنے والی، کیونکہ سارے کنٹریز کو انہوں نے مینوفیکچرنگ کا کانٹریکٹ دے رکھا ہے۔ فار ایگزامپل پیپسی کے لیے انہوں نے انڈیا میں ورن بیوریج کو کانٹریکٹ دے دیا ہے مینوفیکچرنگ کا، اور اسی طرح ہر کنٹری میں الگ الگ لوکل مینوفیکچرر کمپنیز ہیں جن کو وہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، اور ایسی کمپنیز کو کانٹریکٹ مینوفیکچرر کہتے ہیں۔ بہت سے یوٹیوب چینل میں بتایا جا رہا ہے بائیکاٹ سے انہیں کافی فرق پڑا ہے، جو کہ ڈیٹا اور اسٹیٹس سے ابھی تک پروو نہیں ہے، اور میں آپ کو فالس انفارمیشن نہیں دینا چاہتی۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور سچائی جانیں۔ آنکھیں بند کر لینے سے حالات نہیں بدلنے والے۔ کہ اسرائیل کے اکنامی کا ایک بڑا حصہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، الیکٹرانک اکوپمنٹس، پرل اور پریشیس اسٹونز لائک ڈائمنڈ اور آپٹیکل، فوٹو ٹیکنیکل، میڈیکل اپیریٹس سے آتا ہے۔ یعنی آج ہم جو میڈیکل کے بڑے بڑے اکوپمنٹ بھی یوز کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں، انہی سے خریدے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ایئر کرافٹ، مشینری، کار وغیرہ میں ان کی مشینز یوز ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے آپ کہاں تک انہیں بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر فیلڈ میں انہی کی انوینشن انوالوڈ ہے کہ فوڈ اور بیوریجز ان کی اکنامی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ بناتی ہے، جسے بائیکاٹ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ ان سے ان کے اکنامی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والی۔ تو ایسی چیز جو ان نیسیسری ہے، جیسے کہ میکڈونلڈ، KFC، بسکن رابن کی آئس کریمز، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، پیک جوسز وغیرہ، اس کے علاوہ ایک اور انڈسٹری ہے جس کو بالکل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، جو ان نیسیسری ہے اور قوم کے ینگ جنریشن کو برباد کر رہی ہے، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو کون سی ہے وہ انڈسٹری؟
वो है पॉर्न इंडस्ट्री, जो कि एडल्ट कंटेंट बनाती है। और अफसोस की बात यह है कि आजकल मुस्लिम यूथ्स भी इसमें फंसे हुए हैं। आपका बॉयकॉट कब काम करेगा? जब बॉयकॉट ट्रेंड चलता है तो हम बड़े ही जोश से चीज़ों को बॉयकॉट करते रहते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी सब भूल भी जाते हैं और टाइम जाते जाते फिर से अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने और इसमें बने रहने के लिए मेरे वीडियो हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड क्विट द बैड वंस ज़रूर एक बार देख लें। होना ये चाहिए कि अगर आप इन जंक फूड्स को बाइकॉट कर ही रहे हैं तो जिंदगी भर के लिए करें, क्योंकि वॉर के बाद भी इन कंपनीज को फ़ायदा नहीं पहुंचाना है जिसने इंसानियत को इस कदर नुकसान पहुंचाया है। सेकेंडली, ये आपकी सेहत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है और इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। आज डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, इनफर्टिलिटी, लीवर डिजीज़, कैंसर और ना जाने क्या क्या सभी बीमारियों के केसेस बढ़ने का ये जंक फूड कंजम्पशन एक मेजर रीज़न है। तो ऐसे भी इनका बाइकॉट करना ही चाहिए ताकि आप हेल्दी, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बन सकें और अपने समाज की मदद कर सकें, क्योंकि आप जो कंज्यूम करते हैं आप वही बनते हैं। थर्डली, ऐसा करने से आपकी मेहनत की कमाई भी बचेगी, जिससे आप अपने बच्चों को और कौम के भलाई पर खर्च करके उन्हें एक मजबूत इंसान बना सकते हैं जो खुद के साथ साथ कौम की भी मदद कर पाए, आला मुकाम पर फायज होकर, जिसकी आज मुसलमान कौम को बेहद ज़रूरत है और हमारी हालत को बदल सकती है। नेक्स्ट है, हमारे टीनेजर और एडल्ट्स को एजुकेट करना है। और आज जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं फ़िलिस्तीन से मोहब्बत के, उन्हें ये पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न वीडियोज़ रखना होगा, अपने आप को बचाना होगा, दूर रखना होगा, इनका बाइकॉट करना होगा, जो कि फिज़िकल, मेंटल हेल्थ, फर्टिलिटी और नस्लों को बर्बाद तो कर ही रही है, साथ ही इन ज़ियोनिस्ट एजेंडा को भी प्रमोट कर रही है। और यही लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बदनामी और प्रोपोगेंडा भी चलाते हैं। याद रखें, जब तक मार्केट में डिमांड होगी वो कानूनी या गैर कानूनी तौर पर सप्लाई होती रहेगी। इसे बाइकॉट करके आप सिर्फ अपनी हेल्थ को नहीं बचा रहे बल्कि एक बड़े गुनाह से भी बच रहे हैं, जो आज के यूथ में बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि अपने आप को, अपने बच्चों को इस ईजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में चल रही पोर्नोग्राफी से कैसे बचाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर टेक्नोलॉजीज़ को बॉयकॉट करें या अवॉइड करें, क्योंकि अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अपने फ़ोन, टीवी या लैपटॉप, कंप्यूटर से, वो भी कहीं ना कहीं इन इसराइलियों और यूएस की देन है। पर सवाल ये है, तो क्या हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सबको बाइकॉट कर दें? नहीं, ये बिल्कुल अभी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जंक फूड के बिना ज़िंदा रह सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूरे तौर पर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। हम इसराइली प्रोडक्ट्स की बाइकॉट भी उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों से कर रहे हैं। साथ में एक और शॉकिंग बात जान लें कि हमारी आबादी पूरे दुनिया में 1.8 बिलियन यानी 180 करोड़ है, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन में 24% से ज़्यादा है। और इन यहूदियों की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? ओनली 1.6 मिलियन यानी
1,60,00,000। वो दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी बनाते हैं। यहाँ से सोचिए, हमारी आबादी इतनी है, फिर भी इतनी कम आबादी वाले जुल्म कर रहे हैं। की किस्मत हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आखिर हमारी इतनी बड़ी आबादी इतनी कमजोर क्यों है? तुम्हें एक और डेटा जान लीजिए। नोबेल प्राइज साइंस में केमिस्ट्री पर मुस्लिम्स को सिर्फ 3 मिली है और 1 फिजिक्स में मिली है। वहीं नोबेल प्राइज ज्यूइश को या यहूदियों को 151 मिली है। वहीं इकोनॉमी में मुस्लिम को सिर्फ 1 और ज्यूइश को 38 नोबेल प्राइज मिले हैं। मैं आपको ये डेटा क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आप सोचें, मैं आपको एक सोच दे रही हूँ, ओके? यहीं से हल भी मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है और मैं इस पर फर्मली बिलीव भी करती हूँ। बाइकॉट आप शौक से कीजिए, लेकिन बिल्डअप करने के बाद, यानी अभी खुद सोचना चाहिए। पहले फ्रांस, फिर चाइना और अब इसराइल। हम किस किस को बॉयकॉट करेंगे और कब तक बॉयकॉट करेंगे? और ये बॉयकॉट क्या सच में इन्हें बदल रहा है? क्यों मुस्लिम माशरे पर दिन ब दिन तशद्दुद या जुल्म बढ़ती जा रही है? क्या हमने सोचा है हमारी इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी आबादी पर ये छोटी सी कौम और ये छोटी सी आबादी क्यों भारी पड़ रही है? क्या हमसे कहीं गलती नहीं हो रही? सोचें। लिए बाइकॉट से ज़्यादा हमें बिल्डअप करने पर ध्यान देना चाहिए। खुद माइक्रोचिप और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने लगें तो हम आसानी से इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करके उनके इकोनॉमी पर असल में इम्पैक्ट कर पाएंगे। ये कैसे होगा? इसका वाहिद हल एजुकेशन, तालीम है। इसे यहूदियों ने समझा और हर फील्ड में अपना लोहा। तभी हालात बदलने वाली है जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। आज हमारी इतनी बड़ी आबादी सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह गई है, जो सिर्फ कंज्यूम कर रही है, इन्वेंट नहीं कर रही। इसलिए हम पूरे तौर पर दूसरे कौम और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेबल हो गए हैं। हमें सच में आत्मनिर्भर बनना होगा। हम इनके जुल्म के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा और एक मजबूत कौम का सब आगे बढ़कर साथ देते हैं। आज इस्राएलियों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी और हर फील्ड में मजबूत बनाया है, इसलिए पूरी दुनिया के अवाम और पॉपुलेशन मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं उनके गलतियों में। उल्टा पावरफुल कंट्रीज़, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी उनके साथ दे रही है। हम सारे मुसलमान को सारे इख्तिलाफ भूलकर एकजुट होकर हर हाल में तालीम हासिल करनी होगी, वो भी आला तालीम। और हर फील्ड में अपने बच्चों को भेजना होगा, तैयार करना होगा। उनके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी। ऐसा तब कर पाएंगे जब हम उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे। उसमें इंक्लूड होगा हेल्दी डाइट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उनके दिलों में अपने आप के लिए, अपनों के लिए, अपनी आसपास के लोगों के लिए, साथ ही साथ पूरे इंसानियत के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और एक ज़िंदगी की अहमियत क्या होती है वो डालना होगा। तब जाकर वो अपने कौम की और पूरे इंसानियत की भलाई कर पाएंगे। ये एक दिन में मुमकिन नहीं। इसके लिए सालों की मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस चाहिए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है अगर हम आज से ही सब मिलकर अपने डिफरेंसेस को मिटाकर एक साथ एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करें।